Hello everyone, welcome to another class. And this time I am going to start with entrepreneurial planning. This is unit number 2 for class 12. And today we are going to take up class number 1. And the title of today's class is Types of Economic Activities. So dear students, it's a very important class and I believe that you are liking my other classes that I've recorded earlier for you all. And recently we have finished unit number 1, where we have taken all the points of unit number 1 along with all the questions of unit number 1. If you are new to my channel, please go and check all those classes and take up all the questions as well. The best USP or UVP of our classes is that in every class of ours you will find rigorous practice section which contains synopsis, which contains vocabulary words, which contains 10 important questions along with answers and 10 objective type questions. So bacho, without much ado, let's start with today's class. And today we are going to take up types of economic activities. And today we are going to talk about these 7 points. The first one is इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हम जानेंगे क्या डिफरेंस है बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Then we are going to talk about the 3 pillars of economic activities, exploring economic activities through manufacturing, diving into economic activities through services, unpacking economic activities through trading, business as a continuous human endeavor, and essential characteristics of business. और याद रखिए कि हम यूनिट 2 में आज क्लास नंबर 1 ले रहे हैं, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. So let's take a point number 1, economic versus non economic activities. So बच्चों, दो टाइप की एक्टिविटीज है, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Let's take up the first point. Human life revolves around work driven by recurring needs and desires. अगर आप एक इंसान की जिंदगी देखें तो वो रिवॉल्व करती है काम के इर्द गिर्द. और काम इसलिए करना जरूरी है क्योंकि रेकरिंग नीड्स और डिजायर्स बार बार जनरेट होती. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट योर ओन फैमिली, तो बच्चों हर मंथ पेरेंट्स दे हैव टू अर्न मनी in order to fulfill the needs and the desires of the family. और ये एक बार नहीं होता, it keeps on happening again and again, again and again, recurring needs and desires. तो इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जिंदगी काम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. सेकेंड पॉइंट, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू activities can be broadly categorized into economic activities which are focused on the monetary gains through the production, distribution and consumption of goods and services. So I'll just mark up this point. This is a very important point. Let me just clip it. So जो economic activities है बच्चों, इसमें मेजरली हम फोकस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. हम फोकस करते हैं मॉनेटरी गेन्स के ऊपर, जहां पर हम पैसा अर्न करते हैं और हम काम करते हैं प्रोडक्शन पर, माल के डिस्ट्रीब्यूशन पर, कंजम्पशन ऑफ गुड्स पर एंड सर्विसेज पर. तो ये कुल मिला के सारी एक्टिविटीज जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, माल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गुड्स कंजम्पशन करवाते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज को कंज्यूम करवाते हैं, जहां से पैसा जनरेट होता है, जहां से आपकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स फुलफिल करने के लिए मनी जनरेट होता है, उन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और वह जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर ड्रिवन बाय इमोशंस, पेट्रियोटिज्म, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड मॉनेटरी मोटिव्स. और जहां पर आप बात करते हो इमोशंस की, पेट्रियोटिज्म की, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की
और जहां पर आप मॉनेटरी गेन्स के लिए काम नहीं करते क्योंकि आपको काम करना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई यू डू इट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम तो इन्वॉल्व होता है पर मॉनेटरी गेन्स इन्वॉल्व नहीं होते। This distinction highlights the diverse ways individuals engage in purposeful actions to fulfill their material and emotional requirements. तो बच्चों हम सारी जिंदगी सिर्फ मटेरियल और इमोशनल रिक्वायरमेंट्स पर काम करते रहते हैं एंड इट इज डिवाइड्स एक्टिविटीज इनटू टू पार्ट्स, जहां पर हम पैसा अर्न करते हैं और जहां पर हम अपने इमोशंस के बेसिस पर काम करते हैं। So economic activities and non-economic activities. The three pillars of economic activities are, अब economic activities के 3 pillars देख लेते हैं. The first one is, with the realm of economic activities, 3 fundamental categories stand out as, the first one is profession, second one is employment, and third one is business. तो एक एक करके इन एक्टिविटीज को समझ लेते हैं. These are the 3 pillars of economic activities: profession, employment, and business. So let's call it an acronym PEB. Profession है where individuals apply specialized knowledge to instruct and guide others. Profession उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां पर इंडिविजुअल्स के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और वो उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं टू इंस्ट्रक्ट एंड गाइड अदर्स. बेसिकली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आज की डेट में है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आज की डेट में है मेडिसिन मींस जहां पर एमबीबीएस करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, टीचिंग जहां पर हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं. सो दीज आर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. आप इनके बेसिस पर अपने कंट्री में भी काम कर सकते हैं और कंट्री के बाहर भी काम कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट विच इन्वॉल्व्स रेगुलर वर्क इन एक्सचेंज फॉर रेम्यूनरेशन. तो कोई भी काम आप ऐसा करते हैं जहां पे आप रेगुलरली वर्क करते हैं और उसके बेसिस पर आपको पैसा मिलता है. तो इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज ऑल टुगेदर. एंड थर्ड इज बिजनेस, एन एक्सपेंसिव कैटेगरी. ये छोटी कैटेगरी नहीं है, ये बहुत बड़ी वाइड कैटेगरी है. encompasses all economic activities related to the production, distribution of goods and services for the monetary gains. अगर बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है the 3 pillars of economic activities, तो आपने एक्रोनिम याद रखना है PEB: प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस. तो इस बेसिस पर you can get very good marks in this question, and generally this question comes in 2 marks, and I believe you can now very well answer this question. These 3 pillars support the economic structure and provide opportunities for individuals to participate in the economy. तो इसी बेसिस पे, इन 3 pillars के बेसिस पर ही इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर पाते हैं वेरियस एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी के अंदर. तो पहला हो गया आपका प्रोफेशन, दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट और तीसरा हो गया आपका बिजनेस. सो दीज आर द 3 pillars ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विसेज की और ट्रेडिंग एंड ह्यूमन एंडेवर्स. एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू मैन्युफैक्चरिंग. अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स की तो मेजरली होती ही है. मैन्युफैक्चरिंग कंस्टिट्यूट्स अ कोर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये बहुत कोर कंपोनेंट है, पिवोटल है. इस पे सारे मुल्क की इकोनॉमिक इकोनॉमी डिपेंड करती है. किस पर? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर. तो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ कोर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज involving the production of tangible goods through a combination of labor and machines. तो बच्चों यहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है ऐसे गुड्स की जिनको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं with the help of labor and machines. So I'll just LABOUR, labor and machines. This multifaceted process, इसके बहुत सारे फेसेस है. मल्टीपल फेसेस वाला जो ये प्रोसेस है spans a spectrum of activities. बहुत सारी एक्टिविटीज है इसके अंदर. फ्रॉम ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट टू एडवांस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. कोई भी छोटी से छोटी मैन्युफैक्चरिंग, छोटी से छोटी प्रोडक्शन किसी भी चीज की, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, दे ऑल एनकम्पास इनटू वन टर्म कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, रिजल्टिंग इन फिनिश्ड गुड्स दैट कैटर टू कंज्यूमर नीड्स. और ये फिनिश गुड्स बनाते हैं
इसे मार्केट तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर कंजम्पशन होती है, एंड दिस इज हाउ दे सर्व कंज्यूमर्स फॉर देयर नीड्स. Manufacturing plays a pivotal, a significant role in various economic systems. ये economic systems में बहुत significant role play करता है, contributing to the production of goods for consumption and trade. और बच्चों ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प करता है, जिससे गुड्स की कंजप्शन होती है, और फिर इसका ट्रेड होता है. ट्रेड का मतलब है गुड्स की मास प्रोडक्शन होती है, फिर इसको बल्क में परचेज किया जाता है सस्ते दाम पे, और थोड़े से प्रॉफिट के साथ आगे बेच दिया जाता है, विच इज टर्म्ड एज ट्रेडिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट, थ्रू विच वी कैन एक्सप्लोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री. दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. लेट्स मूव ऑन टू सर्विसेज. डाइविंग इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू सर्विसेज. पहले हमने बात की थी टेंजिबल गुड्स की. सर्विसेज ऑल अबाउट इनटेंजिबल गुड्स. In contrast to manufacturing, service represent intangible economic activities consumed at the point of the sale. कोई बनाता कोई है और इसे कंज्यूम कोई दूसरा करता है at the point of the sale. For example, companies they produce Wi-Fi signals, and when you consume it, तो जहां पर इसकी सेल होती है वहां पर इसको कंज्यूम कर लिया जाता है. You cannot see Wi-Fi signals, but still they are produced, still you pay for them, and still you consume them. So that's what intangible stands for. Example of services include healthcare, banking, and telecommunication. Healthcare services है, आपको हेल्थ केयर दी जाती है, आपका इलाज किया जाता है, यू गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल्स. पर यह सब चीजें ना इंटेंजिबल है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विंग पीपल. और उसको ना आप टेंजिबली नहीं देख सकते उसको, पर यस फॉर दैट यू हैव टू पे, एंड दैट्स व्हाई इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बैंकिंग हो गई, पैसा आपका है, बट उसको मेंटेन करने के लिए जो भी लेबर इंटेंसिव काम किया जाता है उसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, एंड दैट इज सर्विसेज. टेलीकम्युनिकेशन, आप फोन्स यूज करते हैं, आप वाईफाई सिग्नल्स यूज करते हैं, तो ये चीजें नजर नहीं आती, बट स्टिल यू आर कंज्यूमिंग देम, यू आर यूजिंग देम, एंड यू पे द कंपनीज फॉर जनरेटिंग दीज सर्विसेज. Second point, the service sector encompassing areas such as banking, communication, transport, insurance, and warehousing serve as the backbone of business activities. जिस प्रकार बच्चों आपको tangible activities help करती हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, उसी प्रकार से intangible activities in the form of services भी help करती है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए. Notably, this sector has witnessed substantial growth. आज की डेट में जितना टेंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा इनटेंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. सर्विसेज दे आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. यू टॉक अबाउट बैंकिंग, you talk about communication, you talk about transportation. Notably, this sector has witnessed substantial growth. बहुत ग्रोथ देखा जा रहा है इसके अंदर. Overtaking agriculture, अब तो एग्रीकल्चर से भी आगे निकल चुका है, and industry in recent times, making it a key driver of economic development. So services, intangible activities has become a key driver for economic development. Now, this is a very, very important point, important, relevant, and a key point. तो ये हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ईपीबी हो गया ये एग्जामिनेशन point of view. Let's move on to the next point. Unpacking economy activities through trading. अब बच्चों ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं प्रोडक्शन करता हूं, कोई व्यक्ति मुझसे बहुत सारे गुड्स थोड़े से सस्ते दाम पे खरीदता है और अपनी रिटेल शॉप पे जाके उसे थोड़े से महंगे दाम पे बेचता है, अर्निंग इंटरमीडिएट प्रॉफिट, जो बीच का प्रॉफिट होता है उसे अर्न करना. That is what trading is. First point, trading is a time honored economic activity. बहुत पुरानी एक्टिविटी है, बहुत कई 100 सालों से एक्टिविटी चल रही है. Involving the exchange of goods or services through buying, selling and bartering. आप सर्विसेज या गुड्स को खरीदते हैं, उन्हें सेल करते हैं या फिर बार्टर करते हैं. मींस in exchange for something you share your goods, you share your services. Now that is what is trading. This dynamic process contributes significantly to economic growth. ये भी बहुत contribute करता है
इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को, एंड डेवलपमेंट बाय फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस रीजन्स एंड मार्केट्स। लाइकवाइज प्रोडक्शन के साथ बच्चों ट्रेडिंग जुड़ा हुआ है, इसमें इन्वॉल्व है फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स and services across the regions and markets. It's part and parcel of production. It's an important point. Second one is an important point. It includes a wide collection of transactions and often involves monetary exchanges. तो इसमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन किया जाता है, मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं, एंड मेकिंग इट अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। बच्चों आप कई बार ऑब्जर्व करते हैं, कई ऐसी शॉप्स है जहां पर कस्टम कॉन्फिस्केटेड गुड्स बेचे जाते हैं, तब वो इसे भी ट्रेडिंग कहा जाएगा कि किसी ने माल प्रोड्यूस किया, आपने उसको, कस्टम ने कॉन्फिस्केट किया, आपने उसे खरीदा एक स्पेसिफिक अमाउंट पर और अपनी रिटेल शॉप पे लाकर एक थोड़े से प्रॉफिट के साथ उसको आपने बेच दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ट्रेडिंग। तो इसमें प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है, इसमें सर्विसेज भी इन्वॉल्व। Okay, it includes a wide collection of transactions and often involves monetary exchanges, making it a vital component of global economy. और ये बहुत बड़ा component है of a global economy. A vital component of the global economy. Business as a continuous human endeavor. आप जो मर्जी बिजनेस कर लीजिए, आप प्रोडक्शन का कर लीजिए, आप सर्विसेज का कर लीजिए, बट विदाउट इन्वॉल्विंग ह्यूमन बींग्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो बिजनेस एज अ कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन एंडेवर, ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड। तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स यू कैन नॉट डू मच। At its core, business signifies an enduring human economic activity with the primary objective of earning profits through the production, purchase and sales of goods and services. तो बच्चों बिजनेस के कोर में ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और इसी से ही सारे काम चलते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, परचेज हो, सेल्स ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज। ह्यूमन एंडेवर या ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Remarkably, the definition of business surpasses considerations of size or nature, as any activity exhibiting specific essential characteristics can be classified as a business. तो बच्चों जो बिजनेस है वो किसी भी साइज, किसी भी नेचर का हो सकता है, और उसकी essential जो characteristics हैं, where production is happening of tangible goods, where you are distributing services, intangible goods, तो वहां पर human element is involved, and on the basis of that human element you can do all those things, and that's how businesses across the globe they are progressing. So remarkably, the definition of business surpasses consideration of size or nature. बिजनेस किसी भी साइज का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एवरेज साइज का भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स, बट यस, एज एनी एक्टिविटी एग्जिबिटिंग स्पेसिफिक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ बिजनेस। और किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी में जहां प्रोडक्शन, जहां पे सेल्स, जहां पे ट्रेडिंग इन्वॉल्व है, ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसे आप क्लासिफाई करेंगे एज बिजनेस। This highlights the universality and adaptability of business endeavors in diverse contexts. तो बच्चों बिजनेस आज हर लेवल पर हो गया है, जहां पे आप प्रोडक्शन करते हैं, जहां पे आप रिटेलिंग करते हैं, जहां पे आप सर्विसेज बनाते हैं, और जहां पे यू इन्वॉल्व ह्यूमन रिसोर्सेज। तो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक बिजनेसेस एवरीवेयर नाउ। So business as a continuous human endeavor, and it is happening throughout the globe at small, medium and bigger levels as well. Essential characteristics of business. Let's take up these points. To qualify as business, activities must embody several critical characteristics. और एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को बिजनेस कहने से पहले उसके अंदर कुछ स्पेशल क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का होना अनिवार्य है. It's necessary, and these include the presence of an entrepreneur who initiates and undertakes the associated risk. तो सबसे पहले है बच्चों presence of an entrepreneur, who initiates, to start करता है, and undertakes the associated risks,
अ क्लियर इकोनॉमिक मोटिव फॉर प्रॉफिट, और सबसे बड़ी बात है वो इसलिए काम करता है बिकॉज उसको प्रॉफिट्स अर्न करने होते हैं। द इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन करे, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, चाहे वो गुड प्रोक्योर करे ट्रेडिंग के लिए एंड सर्विसेज के लिए, देयर सब्सिक्वेंट सेल, उन चीजों की गुड्स और सर्विसेज की बाद में सेल्स और एक्सचेंज या किसी भी हाफ में बार्टरिंग करना, आप मेरे गुड्स ले लीजिए, मैं आपकी सर्विसेज ले लेता हूं। द रिक्वायरमेंट फॉर रेगुलरिटी इन कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस, और बिजनेस ऑपरेशंस कंडक्ट करने जरूरी है, खरीदना और माल को बेचना बहुत जरूरी है, सेल करना बहुत जरूरी है, एंड द जनरेशन ऑफ यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग प्लेसेस में और अलग अलग टाइम रीजन में आपको ये करना पड़ता है। जब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक्टिविटी के अंदर आते हैं, जहां पे एक एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व है, जो रिस्क लेता है, जो माल खरीदता है, माल को सर्विसेज खरीदता है, बार्टर के बेसिस से उन चीजों को बेचता है, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अर्न करता है और इसकी रेगुलरिटी मेंटेन करता है बाय कंटिन्यूइंग द ऑपरेशंस, इज टर्म्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। मोर ओवर, इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन यूज इट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Moreover, business activities inherently involve the pursuit of profit, exist in an environment of uncertainty of return. बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो एक चीज कॉमन है वो है अनसर्टेनिटी, कभी आपको बहुत प्रॉफिट्स आते हैं और कभी आपको प्रॉफिट्स नहीं आते। इट इज बेटर अगर आप इन चीजों की हैबिट्स पहले से डाल ले, और जो इन चीजों की हैबिट्स पहले से डाल लेता है वो हमेशा बिजनेस को आगे लेके चला जाता है। Business is 2 steps loss and 1 step profit. I've told you in my earlier sessions as well. And carry on element of risk involved है, which keeps businesses vigilant and adaptable to the unpredictable external factors that impact their operations. और बच्चों, इस कारण ही बिजनेसेस में आपको अवेयर रहना पड़ता है, विजिलेंट रहना पड़ता है और अपने आप को अडेप्ट कर लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस सर्कमस्टेंस, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स आर बाउंड टू कम एंड इट कैन इम्पैक्ट योर operations if you are not adaptable. These characteristics collectively define the dynamic and multiple phases of businesses as a vital component of the global economy. तो अगर आप बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 2 and 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों, ग्लोबली बिजनेस इसी तरीके से किया जाता है। बहुत सारी चीजें बिजनेस में अनप्रेडिक्टेबल होती है, मैं तो कहता हूँ सारा बिजनेस ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन होता है। इसमें 2 स्टेप्स लॉसेज है और 1 स्टेप गेन है। 2 स्टेप लॉसेज हो सकते हैं कि आपके 1,000 रुपए के 2 लॉस हो और गेन हो सकता है आपका 10,000 रुपए का हो जाए। तो दिस इज व्हाट बिजनेस इज। So with this, we have come to the end of today's class where we have taken 7 points. In today's class, we have talked about the difference between economic activities and non-economic activities. We have talked about the 3 pillars of economic activities, that is profession, employment and business. PEB जो मैंने आपको बताया था. Creating acronyms is an easiest way to remember the points. Exploring the economic activities through manufacturing, through services, through trading, and through human endeavor. And then we have talked about essential characteristics of business. So these are the types of economic activities that happens in a business. Or bachcho, this is going to continue now, because this is a chapter unit 2 where we talk about entrepreneurial planning, a lot about entrepreneurial planning. And today we have taken class 1 types of economic activities where we have talked about these 7 points. And please do not miss rigorous practice session where we have talked about the synopsis of today's class, where we have taken vocabulary from the session. और आज मैंने कुछ changes किए हैं। मैंने जो 10 important words आपको दिए हैं उसमें आपको मैंने English meaning भी दिया है और हिंदी meanings भी दिए, in order to make the journey of learning easier for you. फिर मैंने बात की है 10 questions की, 10 questions की मैंने answers दिए हैं. This is part 1.
And then I've talked about 10 objective type questions along with answers. And these are 10 objective type questions. And here are the answers to these questions. So, bacho, with this, we have come to the end of today's class. Stay strong, stay healthy, and take lots and lots of care of yourself. And always remember that we people are working very, very hard for all our 11th and 12th grade students to learn entrepreneurship. So follow us and subscribe us via these links as well. मैंने 2 links आपके साथ share किए हैं. हमारे और 2 channels हैं जिनको आप subscribe कर सकते हैं through these links. So until meet next time, bye-bye for now, and always remember, with Mavericks India, you will always gain. So see you all in the next class. Bye-bye for now. God bless you all.